જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંધાને વચકાસૌ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દિવી ઉડાવી. વાંધાને વચકાસૌ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દિવી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. જો વિશ્વના કરારો લાવે છે બેકરારી. જો વિશ્વના કરારો લાવે છે બેકરારી. તેમાંય મિશ્ર ચેતન દાવા કરે કરારી. તેમાંય મિશ્ર ચેતન દાવા કરે કરારી. દાવા કરે કરારી. આરોપી માહી જજ કહે છે અમોને આત્મા રૂપે જો જીત તારી. આરોપી માહી જજ કહે છે અમોને આત્મા રૂપે જો જીત તારી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હિતાક્ષીબા. જય સચ્ચિદાનંદ રમી દાદા. એ ત્રિમંત્ર બોલાવીએ. ત્રિમંત્ર બોલાવીએ. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વીતરાગાય. નમો વીતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ.
नमो उवज्जायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं मङ्गलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मङ्गलम् पढ्वं हवै मङ्गलम् वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके ताक्षीबा। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से यानी कि कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। अच्छा श्रेया। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। ओके श्रेया। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, चे फिर भी है सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके પેલી બેનિફિટ્સ પ્રેયર કોઈને આવડે છે? શ્રેયા યાદ છે? एक શ્રી हेल्थ ने પિતાક્ષી हेल्थ ने खबर આવડે છે? કયું આવે છે? हेल्थ અને સ્ટડીની સ્ટડીની બોલો। से सच्चिदानंद। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता से अध्ययन करने से उत्कृष्ट गुण देगी, अपने लक्ष्य और सफलता को खुशी को प्राप्त करवाएगी। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति। વેરી ગુડ। શ્રેયા સ્ટડી આવડે છે? हाँ। બોલો। અભ્યાસમાં સખત મહેનત, પ્રામાણિકતા અને નૈતિકતા ઉત્તમ ગુણ આપશે, મારા લક્ષ્ય, સફળતા અને સુખ પ્રાપ્ત કરાવશે। હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો। વેરી ગુડ। ત્રીજી આવડે છે સત્સાધનની? હા। સોરલ આવડે છે? સત્સાધન ઓકે શ્રેયા। સચિદાનંદ, દરરોજ અને નિષ્ઠાપૂર્વક બધા સત્સાધનો કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે, મારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મારા ત્રણ ધ્યેયો નિશ્ચિત કરાવશે, મારી શક્તિ વધારશે, મારું જ્ઞાન વધારશે, મારો વ્યવહાર સુધારશે, દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવશે અને તેમના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવશે।
હે દાદા ભગવાન મને આ બાબતે શક્તિ આપો. જી સચિદાનંદ. Oh, very good. I'm really proud of તમે. હે you તમે દરરોજના સાંભળો છો? હા હા, કરો છો દરરોજના કરો છો? ના દરરોજ નથી કરતી. તો ક્યાંથી યાદ આવી ગયું? Wonderful, wonderful. That is very, very good, very good. You know? Okay, very good. ચાલો હવે ઓકે શ્રેયા તો નથી આવી, તોરલ આવી છે ફ્રાઈડે. હિતાક્ષીબા હોમવર્ક શું હતું યાદ છે? હા, હોમવર્ક એ હતું કે આપણે આપણી વાણીથી કાપવાનું નથી, એટલે કોઈ બોલે તો એની વચ્ચે નથી બોલવાનું. વેરી ગુડ. તો તમે એના પર ભાર આપેલો? હા, તમે એના પર ભાર આપેલો એટલે નોટિસ કરેલી કે 3 દિવસ તમારી ભાષા કેવી રહી, કેવી રીતના મમ્મી સાથે, પપ્પા સાથે, બેન સાથે? અમારી ભાષા તો સારી રહેતી, પણ આજે સાયન્સના સર પ્રત્યે બગડી ગઈ હતી. કોની સાથે? સાયન્સના સર હારે. શું થયું હતું? હા, છે ને સર સમજાવે તો કઈ સમજાતું બી નથી, અને અલગ અલગ ટાઈપનું પૂછે તો કઈ ખબર ના પડે. તો તમે શું કર્યું? ટીચરને શું કહ્યું? ટીચરને નહોતું કીધું, મારી ફ્રેન્ડને કીધું તો આ કેવા ટાઈપના સર છે, આવું કેમ કરે છે? તો ટીચર ગુસ્સે થઈ ગયા? ટીચરને નહોતું કીધું, મારી ફ્રેન્ડને કીધું હતું કે સર કેમ આવું કરે છે. ટીચરને નહોતું કીધું. ફ્રેન્ડ સાથે. ગુડ. શું ટોપિક શું હતો? સાયન્સના સર સમજાવે કઈ સમજાતું નહોતું. એટલે સાયન્સનો ટોપિક શું હતો? ફોર્સ એન્ડ પ્રેશર. શું? ફોર્સ એન્ડ પ્રેશર. પેલું ના આવ્યું. વોટ ઇઝ ફર્સ્ટ? Force and pressure. Right? So force and pressure. You study in English or Gujarati? ઇંગ્લિશ. So what is force? એટલે આપણે કોઈ વસ્તુને ધક્કો મારી કે ખેંચીને ફોર્સ કહેવાય. ધક્કો તો આપણે આપણી લેંગ્વેજમાં, પણ what is the scientific language? Shreya, do you know what force is? યસ. Okay, what is force? The push or pull on an object with a mass causes it to change its velocity. So જોરથી બોલો please. The push or pull on an object with a mass causes it to change its velocity. Yeah, very good. So, force is always in relation with mass, right? Okay, anyway, so, yeah, તમે કયા સ્ટેન્ડર્ડ વાંચો હિતાક્ષીબા? 8. શ્રેયા તમે? 7th. તમે you go private school, so you're ahead, right? A little bit? Curriculum ahead હશો ને? So, you people need to talk to each other કે ભાઈ તમે, force વિશે શું આવડે છે, This is all our one family, na? So, Hitakshiba, you can once in a while call her and say, hey, what is force? Okay. Shreya, did you do the homework? No. Toral? Toral, you were there Friday? Yeah. And you forgot. Anyway, do you talk nicely to your mummy Yes. all the time? Yeah. Sometimes. Sometimes. How about your sister?
I don't talk nice to her sometimes. How about your teacher? Yeah, I do. You don't have a problem with teacher? No. Okay, Divakanji. સી એ ગુજરાતી હિન્દી ને ના હવે ગુજરાતી કરો ને બધા ગુજરાતી સમજે છે. ગુજરાતી ઇંગ્લિશ દેખો અરે કેવું છે ટીચરની જોડે ક્યારે પણ ગમે તેમ બોલતા નથી કેમ એવું અને નાની બેન છે એની જોડે ગમે તેમ વાત કરવાની સમટાઈમ્સ અને મમ્મી જોડે પણ સમટાઈમ્સ તો મમ્મી તો બિગર ટીચર ના કહેવાય ટોરલ હા કહેવાય કે ના કહેવાય કહેવાય. તો પછી એટલે આ તો આપણે એક વસ્તુ સમજવાની છે શું दीपकांत जी अभी हिंदी में कर लो. हाँ देखो ऐसा है ना कि जैसे पुलिस के साथ कोई गड़बड़ करता है पुलिस के साथ सब लोग अच्छे से बात करते हैं ना હા बराबर है क्यों पुलिस से अच्छे वो हमें कुछ गलत भी बताते हैं ना फिर भी बड़े अच्छे से साफ 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 करके करते हैं कि नहीं ऐसा बोलो ना टोरल बोलो बोलो. હા फिर भी हमारी हमने और यानी कि दादा भगवान का साइंस क्या बताता है लाइफ साइंस कि जहाँ हमारी गलती होती है उधर हमें क्या करना चाहिए हाँ क्या करना चाहिए गलती होती है तो हाँ प्रतिक्रमण. प्रतिक्रमण. प्रतिक्रमण करना जरूरी है હા हाँ હા हाँ प्रतिक्रमण करने का जहाँ जहाँ हमारी गलतियां होती है तो प्रतिक्रमण ही उसका करेक्शन कर देगा समझ में आया हाँ ऐसा है तो गलतियां तो सबसे होती है रंडी दादा आप तो गलती करते नहीं है ना नहीं करते ना. तो फिर क्या करते हैं आप हमको तो प्रतिक्रमण ही करना मांगता है. समझ में आया गलतियां हो जाती हैं हम करते नहीं है समझे बेटे समझ में आया હા गलती करने का मतलब क्या है जानबूझकर हम गिरते हैं कभी નહીં अव्यय जानबूझकर गिरता है नहीं धैर्य भी कभी कभी गुस्से में आता है तो जानबूझकर गिरता है देखो ये बात है जानबूझकर कोई गलती करते नहीं है गलतियां हो जाती है और इसीलिए बताया है कि गलतियां जब जब हो जाती है आप प्रतिक्रमण करके माफी मांग कर दोबारा तय करो कि मुझे गलती नहीं करना है तो फिर गलतियां होगी ही नहीं करते नहीं है लेकिन हमारी भाषा में हमेशा बोलते हैं आपने ऐसा किया वैसा किया मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया समझ में आया ये साइंस ये लाइफ साइंस अगर आपको अभी ही समझ में आ जाता है और यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट यानी आप उसका यूज करना शुरू कर देते हैं तो दादा भगवान को 50वें साल में ज्ञान प्रकट हुआ था आपको बहुत जल्दी प्रकट होगा रंडी दादा बात सही है हाँ बहुत बिल्कुल. दादा भगवान ने यही किया कि जहां जहां गलतियां हुई उन्होंने वो सभी गलतियों की माफी मांग ली और माफी मांग कर तय किया दोबारा ऐसा नहीं करना है तो ऐसा करेक्शन करते 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 एट द एज ऑफ 50वें साल में अंदर दादा भगवान प्रकट हो गए समझ में आया सबको हाँ तो श्रिया बहन समझ में आया હા હા अपनी बात गलती नहीं है तकरीबन समझ में आया
तोरल, हाँ। हाँ। अव्यय, हाँ। ऐसा है, गलतियां हो जाती है। कोई पूछे ना पूछे, कहे ना कहे, लेकिन जब जब गलतियां ऐसे होती है तो उसको पहचान करके माफी मांग कर दोबारा तय करो नहीं करनी है। तो जितनी गलतियां आपने देखी, पहचानी, माफी मांगी, दोबारा नहीं करने का तय किया, उतना अंदर आपके अंदर दादा भगवान खुले हो गए। दादा भगवान को खुला करना है ना। हम वही तो प्रार्थना बोलते हैं कि दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व के मानवी बनना है। मैन ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं ना हम, प्रार्थना में बोलते हैं कि नहीं। हाँ। हाँ। ये बात है, समझ में आया। हाँ। तो ये, क्योंकि हमारे लाइफ के इतने सारे पहलू हैं, इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं कि जहाँ पर गलतियाँ होती रहती है, क्योंकि वहाँ हमने कभी लक्ष्य नहीं दिया है, अटेंशन नहीं दिया है कि ये भी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चलता है, आप माफ़ी मांगेंगे, तय करेंगे, तो उतना मैटर क्लियर हो गया, वो पहलू हमारे क्लियर हो गए, समझ में आया। और इतने आपके अंदर दादा भगवान खुले हो गए, प्रकट हो गए। समझ में आया ना। धैर्य, कि मम्मी को मौका देंगे डांटने का। अव्यय, डंडी दादा को डांटने का मौका देना है आपको, नहीं देना है। नहीं दे हाँ, जब गलती नहीं होगी दे तो डांटे नहीं। नहीं देना बेटा। हाँ, नहीं 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 देना। देती। बस वेरी गुड, माय ब्लेसिंग। जय सच्चिदानंद। ओके गुड। तो अभी आपको तो बहुत अच्छा स्कोर आया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप टीचर के बारे में कभी बुरा सोचते हैं कि नहीं? नहीं नहीं। कोई भी टीचर? हाँ कोई भी चीज। और धैर्य, आप? मेरा कभी ना कभार मैं मतलब अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं कभी ना कभी गलती से सोचता भी हूँ। और आपने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजा आज? दादा मेरे स्कूल से यार आने के बाद टाइम ही नहीं मिला। कोई एक्सक्यूज है कि नहीं लिखने का रीजन है? रीजन भी है। रीजन कैसे हो सकता है? रिपोर्ट नहीं भेजते हैं तो खाना खाया था आज? दादा हाँ? रीजन भी है और वो भी है ना तो रीजन तो फालतू। हो ही नहीं सकता है। ओके, रीजन क्या होता है? को नहीं करने का तो रीजनिंग सब मिलता है। देखो ये सब ने भेजा है आज तो नव्य ने भी भेजा है। अभी आपको क्या हो गया था स्कूल में? स्कूल में। आपको क्या हो गया था स्कूल में? स्कूल में फ्रेंड्स के साथ। हाँ, आप ये लिखा है ना। हाँ वो मैं बैठा था तो उसने मुझे ऐसे छेड़ा तो मुझे गुस्सा आ गया उसमें। ओके, और दूसरा दूसरा आज तो रिपोर्ट तो सबका बहुत अच्छा है। कभी अभी आपका फर्स्ट है तो बहुत डी है, दूसरा में सब डी नहीं है। वेरी गुड। रे आपको क्या हो गया? एक्सरसाइज का क्या हो गया आपको? रे करने का। पढ़ने का है। ओके। आप इताक आपको तो 2 दिन से तो परफेक्ट स्कोर आता है। क्या हो गया आपको? ओरल आपको क्या किसमें दिया है आज? हाथ सच सत्साधन में? साधन। क्यों, क्या हो गया सत्साधन में? मेरा 2 बाकी रह गए हैं हाँ, तो करने का है क्या? नहीं पूरा करना है। करने का तो एक ए लिखने का है।
सिंसियरिटी से करने का है तो ए लिखेगा. ओके. सो दीपक दादा, ये वेरी इम्प्रेसिव इन लोग का. अब देखना, अभी ये जरा ध्यान रखना, तो सबका अभी वेरी इम्प्रेसिव स्कोर कार्ड होते हैं दीपक दादा. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. धैर्य, आप तो मालूम नहीं कब सीरियस होने वाले हैं. आपको 9 कलम आ गए? नहीं आई. देखो दीपक दादा, 9 कलम भी उसने इतना दिन से नहीं पक्का किया. कुछ नहीं, अभी पक्का कर लेना. हाँ, धैर्य. एवरी डे एक एक करते रहना. 10-15 डेज में कंप्लीट हो जाएगी. थैंक ओके. यस, वेरी गुड. नहीं वो दीपक दादा भाई, एक एक क्यों करते हैं? उसको टाइम बहुत है उसके बाद. वो बात सही है, लेकिन अभी जो स्कूल का कमिटमेंट, घर में भी वो सब होता है, तो एटलीस्ट अभी 15 डेज में कर देना. उन्होंने कहा तो भी हमको वी शुड एक्सेप्ट दैट. अब तो हाँ, मैंने कोई भी बोला, एक वीक में बोला था, हमको नहीं किया. तो अभी रिवाइज डेट्स. नो, इफ यू हैव टाइम, यू शुड जस्ट. वो तो इतना काम आएगा आपको, आपको मालूम नहीं कैसे काम आएगा वो. ओके. श्रेया, 9 कलम कैसे काम आने वाले हैं आपको? अगर हमारे मन वचन काया और वाणी सबको ठीक करेगा, हमको समझ आएगा कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, कब हम डुबाते हैं और क्या गलती करते हैं. वेरी गुड. हिताक्षी बा. नव कलम से हम दादा भगवान जैसे बन सकते हैं, बन पाऊंगी और मनमानी काया से भूल नहीं होगी. वेरी गुड. तोरल. अव्यय. नौ कलम से हमको अपनी गलतियां पता चलती है और कौन सी गलती है उसमें से मालूम पड़ता है आपको? क्या किसी पे गुस्सा नहीं होना ओके. दूसरा. और हिताक्षी बा. दूसरा. हम दादा भगवान जैसे बन सकते हैं. क्या? हम दादा भगवान जैसे बन सकते हैं. आपने तो वो तो बोला, क्या मिस्टेक्स में से अब ये बोलता है उसमें से मिस्टेक्स अपना मालूम पड़ता है. उसने एक तो बोला कि गुस्से नहीं होता है किसी को दुख देने का. दूसरा. श्रेया. अ, और किसका अहम नहीं डुबाना. वो तो बोला. दूसरा. हम नो है. समरसी नो. खोराक. नो मिस्टेक्स उसमें. समरसी खोराक. हाँ. हम नंबर समरसी खोराक. डाउन द लाइन जाओ ना. नंबर 2 बोलो. नंबर 2 में क्या? नंबर 1 का तो हो गया. नंबर 2 में क्या मालूम पड़ता है? कोई भी साधु साध्वी उनका उनके प्रति उनका हम नहीं दिखा. नंबर 2 वो है. नहीं, वो धर्म धर्म भूल गई. ठीक है. धर्म. आप मम्मी को हैरान करता है, मम्मी का धर्म करने. यू कैन वायलेट देन ना मम्मी का धर्म भी. सबका धर्म होता है ना. Behaviors and all that stuff is part of the. Number 3. Yeah. अभी का अहम ना दो. Number 3. साधु साध्वी या फिर कोई डॉक्टर हो. कोई हम बुरे बुरे नहीं बोलता. Number 4. अभाव. अभाव किसी का तिरस्कार किसी भी जीव मात्र को ना पहुंचे. क्या बोला? अभाव तिरस्कार किसी भी जीव मात्र को ना पहुंचे.
नहीं, उसको ये मालूम पड़ा कि किसी को अबाउट तिरस्कार किया कि नहीं, वो मिस्टेक है। हम्म, इसमें आप बोला ना अभी ने कि मिस्टेक, अपनी गलती किधर होता है, वो अबाउट तिरस्कार किया कि नहीं, वो मिस्टेक है। नंबर 4, नंबर 5। हाँ। हाँ बोलो। कठोर भाषा और जो शासन लास्ट की कर्म होता है उसका मतलब क्या होता है? क्या बोला? जो लास्ट कर्म है ना 9 कर्मों में से, उसका मतलब क्या है लास्ट वाले का? आई डोंट नो, आई कैनॉट हियर, क्या बोलते हैं? लास्ट 9th कलम है ना, उसका मीनिंग क्या होता है? आपको मालूम है क्या होता है? वो कौन सी कलम है? ओके, तो जरा जगत कल्याण कल 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 कराने की। कल पढ़ के क्वेश्चन करना। ओके। ओके, चलो जल्दी, टाइम हो गया है। नंबर 5 में क्या गलती हो सकती है? मैं कठोर भाषा और तंतीली भाषा नहीं बोलती। वेरी गुड। नंबर 7 में? ओके, वो स्किप करेगा आपके लिए। नंबर 8? नंबर 8 में हमें किसी भी को यहाँ पर है या कहीं पर और है। हम्म, ओके, 8वीं कलम बोलेंगे भी तो भी पता चल जाएगा। देखो प्रत्यक्ष जगत बच्चे करो। लोग, कल कल का होमवर्क, 9 कलम में क्या गलती मिल सकती है अपनी, वो चर्चा करेंगे। ये फंडामेंटल हमको तो मालूम था, सबको आता है। वी विल गो फंडामेंटल। ओके। ओके, if you want to say something, टाइम हो गया है। नहीं, राइट है, बराबर है। 9 कलम को अच्छे से, उसका मतलब ये है कि आप 9 कलम बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे की समझ आपको पक्की कर लेनी है। तो ये प्लीज कर लेना। अगर नहीं समझ में आए तो मम्मा को पूछ के पक्का कर लो, ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि उसका मतलब क्या होता है। जय सच्चिदानंद। दैट्स अ गुड वन। टॉक टू योर पेरेंट्स कि या इनमें एक एक कलम में क्या क्या गलती हो सकती है, कल डिस्कस करेंगे। ओके। ओके, सॉरी મહેશજી, તમે લેટ આવ્યા એટલે કન્ટિન્યુટી રાખી, હા? no, fine. Can I leave now? या नाउ મહેશજી, ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ। Yeah, okay. Jai Sityan Maheshana. જય સચ્ચિદાનંદ। Jai Sityan kids. ઓ બટ Jai યુ Sityan. કમિંગ બેક ને દીપકાજી? I'll be there. I'll be there. Okay. Huh? બીકોઝ આઈ હેવ ટુ લીવ ને। ઓકે, if you Fine, don't fine. Before finish. that, it will happen. Jai Sitchidanand. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ। ઓકે મહેશજી, આપણે હવે हाँ પદ સાંભળીશું। हाँ हाँ રેકોર્ડિંગ જ નથી થયું। ઓ, क्या बात है। ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ અમીબેન। જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી. જય શ્રી અંકાલ. જય सही સચ્ચિદાનંદ। से। ઓકે, હું મૂકું છું। ઓકે, અમીબેન। હા. જય સચ્ચિદાનંદ. બુદ્ધિના વ્યભિચારથી ઊભું જગત સ્વગત ભ્રાંતિ છેદક આ અબુધ છોડાવો જગલત ચિત્ર વિચિત્રી બળતરા ત્રણભૂતા આદલ જન્મે મરે છે જીવન નિશાળિયા બાળક ઘૂંટવા સહેલા એક ભોજન ને સંડાસ જન્મ જન્મની આદતો ચાર ગતિ લીબાસ બ્રહ્મચારી પરસાન માટ જય બજરંગ વિલાસ